فرصت کے لمحات گئے نعمت خدا کی جان لو، کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی اللہ پاک آپ کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے تو یاد سے اول اور آخر درود پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فرصت کے لمحات میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندگی کے مصروف ترین شیڈول میں جب فراغت کے چند لمحات میسر آتے ہیں، دراصل یہ اللہ پاک کی عظیم نعمت اور قیمتی تحفہ ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے ہم ان قیمتی لمحات کا کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج کے دور میں ہم میں سے اکثر لوگ ان قیمتی لمحات کو بے مقصد ایکٹیویٹیز اور فضولیات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا کبھی یہ خیال آیا کہ وہ وقت جو ہم سوشل میڈیا، فضول گفتگو اور کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے بطور امانت ایک نعمت عطا ہوئی تھی؟ آج کے پروگرام میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ فضولیت ہمیں کہاں لے جاتی ہیں اور ہم اپنے فراغت کے لمحات کو کیسے بامقصد بنا سکتے ہیں، کیونکہ سوالات ہوں گے ہمارے اور خیالات آپ کے، ہمارے اور مدنی چینل کے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرصت کے لمحات گئے نعمت خدا کی جان لو، کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے فرصت کے لمحات اور ہمارا موضوع ہے فضولیات۔ لوگ اپنا وقت جو بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت اور اللہ پاک کا بہت ہی پیارا تحفہ ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے اس وقت کو کیسے گزارتا ہے۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائف کے ایکسپیرینس سے کیا سیکھا کہ ہمیں اپنا وقت فضول گزارنا چاہیے یا مصروف گزارنا چاہیے اچھے کاموں میں۔ آپ یہ بتائیے، آپ نے جوانی کے دن بھی دیکھے، لڑک بن کے بھی دیکھے، آپ بڑھاپے کی طرف ہیں، فرصت کے جو لمحات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فضول وقت گزارنے، فضول نہیں گزارنا چاہیے، ان کو نماز پڑھنی چاہیے، ان کو سب سے پہلے اپنا جسم پاک رکھنا چاہیے، کپڑے صاف ستھرے پہننے چاہیے، وضو میں رہنا چاہیے، وضو میں رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، اور ان کو جو ہے نا ایسے غلط حساب میں نہیں رہنا چاہیے۔ صحبت کا بھی اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ ہاں، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ کئی اچھے کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ والے کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کی نسبت ادھر بدل جائے گی، چور ڈکیٹ کے ساتھ بیٹھے گا اور جھوٹے فراڈی کے ساتھ بیٹھے گا اور سود خور اور راشی مرتشی انسان کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کی وہی نسبت ملے گی، وہی نسبت ملے گی نا اس کی۔ اس کو وہ تھوڑا ہے جو چور کے ساتھ بیٹھے گا، ڈکیٹ کے ساتھ بیٹھے گا، اس کو مسجد کی بات تھوڑی بتائے گا۔ اپنے آپ کو کس کام میں مصروف کریں تو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں؟ نماز میں اور عبادت میں اور اچھائی میں اور سچائی میں اور خدمت خلق جہان کی میں اور اچھائی میں کوئی گزارنا چاہیے، برائی میں کبھی نہیں گزارنا چاہیے۔ ہم ہوٹل پہ روزہ کھولنے جاتے تھے رمضان میں تو ایسے جیسے کرسیاں بھی اس ٹائم کو لاگیو بیٹھے ہوتے تھے، پھر ہم روزہ کھول کے آتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر روزہ رکھنے جاتے تھے۔ میں نے بولا یار یہ بندے اب بھی آئے ہیں، اس نے بولا حاجی صاحب یہ جس ٹائم تم روزہ کھولنے کے لیے آئے تھے تم نے نماز پڑھی چلے گئے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی آپ روزہ رکھنے آئے، یہ وہی بندے ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فضول وقت ضائع کیا پوری رات۔ ابھی بھی ایسا ہے، اس جگہ پہ دیکھنا، یہ تو آپ اس ٹائم کو آئے، آپ رات کو
मैं रात को इधर 2:30-3 बजे जाता हूँ, ये कुर्सी एक में भी बैठने की जगह नहीं होती, और जिंदगी का कोई पता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की भी नहीं है, एक पल की भी नहीं है। अल्लाह पाक आपका वक्त देना कबूल फरमाए। मदीशन के नाज़रीन, जैसे कि मेरे बुजुर्ग समय फरमा रहे हैं कि वक्त सबके पास होता है, वो उसके इख्तियार में वो उसको कीमती बनाए या उसको ज़ाया कर दे। ज़ाया कर देंगे पछतावा हो, कीमती बनाएंगे दुनिया में भी सुरखरू रहेंगे और आखिरत में भी। वक्त चला गया दोबारा नहीं आएगा, एक सांस नहीं मिलेगी, एक दफा सुबहान अल्लाह कहने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। उस वक्त एहसास होगा काश वो वक्त पूरी पूरी रात जो मैंने गुजार दी रोड के ऊपर, होटल के ऊपर, चौपाल में दोस्तों के साथ, काश मैं उस वक्त जिक्रुल्लाह करता, काश मैं सुबहान अल्लाह ही कह देता, काश मैं दुर्द पाक ही पढ़ लेता, अपने गुनाहों की माफी मांग लेता। आज वक्त है, अल्लाह पाक ने मोहलत दी है, अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी मांग ले। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। लोग ऐसे हैं जो अपना वक्त फजूल कामों में गुजारते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जैसे मेरी मिसाल है, मैं बचपन से लेके अब जवानी और अभी तक मतलब काम ही करता रहा, तो मेरे पास तो कोई इतना वक्त नहीं था कि मैं इसको फजूलत में गुजारूँ। लेकिन ये कि आमतौर पर लोग जब रिटायर हो जाते हैं, इसके बाद उनके पास टाइम होता है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि बजाय फजूलियत में गुजारने के मतलब ज़िक्र में गुजारे, नमाज़ों में गुजारे, जो नमाज कज़ा हो गई उसमें गुजारे, ना नेक कामों में गुजारे, क्योंकि अब तो अल्लाह अल्लाह करना ही है, फिर तो जाना ही है। और मतलब दुनिया ये है ना कि दुनिया में रहते हुए आपको आखिरत बनानी है, आखिरत की तैयारी करनी है। बेशक तैयारी करनी है। मिसाल के तौर पे सारी जिंदगी उसमें गुजार दी, रिटायरमेंट भी हो गई और नमाजें भी पढ़ते रहे, लेकिन कुरान पाक किसी को सुनाया नहीं। हाँ, मतलब कुरान पाक को तजवीज़ के साथ सीखना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी नमाज कज़ाएँ रह गई उनको अदा करना चाहिए, नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, मतलब अपने आप को अच्छे कामों में गुजारना चाहिए ताकि आखिरत बने। अच्छा, फजूल कामों में वक्त गुजारने से नुकसानात का अंदेशा है? जाहिर सी बात है, फजूलियात होगी। देखो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान की आमाज का होता है। अब ये देखा है मैंने कि यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, आजकल की खासकर नौजवान नस्ल, यहीं की बात कर रहा हूँ, चाय खाने में बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। बड़ा अफसोस होता था। अल्लाह इनको भी हिदायत दे, गलतियाँ हुई हैं तो बंदा इस्तिग़फ़ार करता रहे, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। इस्तिग़फ़ार करता रहे, उसका उजाला ये करे कि खुद नेकियों की तरफ आए, अपनी औलाद को भी नेकियों की तरफ लाए। ये बताइएगा कि जो वक्त इंसान को फरागत का मिलता है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है कि बंदा थोड़ा सा फारिग होता है, उस वक्त को लोग फजूलियात में गुजारते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब से हमारा ये मोबाइल सिस्टम आया है ना, इसमें फजूलियात के अंदर इन्हें बहुत टाइम गुजार देते हैं मोबाइल देखने में। सही है, अगर इसके अलावा कोई अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दें, सिर्फ दुरूशी भी उधर पढ़ लें, तो इसमें एक नेकी भी मिल जाती है और आखिरत भी संवर जाती है, वक्त भी अच्छा पास भी हो जाता है बन जाता है और कीमती भी बन जाता है। तो बेहतर है कि अल्लाह अल्लाह करें। आजकल मोबाइल के अंदर इतना फजूलियात आ गई है कि बंदा एक दफ़ा देखना शुरू होता है तो फिर वो देखता ही चला जाता है, चाहे अजान हो रही है, चाहे कुछ ही हो रहा है, कुछ नहीं देखता वो, बस वो मोबाइल में लगा रहता है। तो बेहतर है कि अल्लाह अल्लाह करें। आजकल का दौर ऐसा चल रहा है, बीमारियाँ चल रही हैं। आजकल सुनने में आया है चिकनगुनिया, तो पहले कभी हमने इस बीमारी का नाम नहीं सुना था। काफ़ी सारी बीमारियाँ जिसका हमने नाम नहीं सुना था, वो बीमारियाँ निकल के आ रही हैं। तो बेहतर है कि अल्लाह अल्लाह करें, बीमारियों से दूर रखें, अपने आप को साफ रखें, न वजू में रखें, जिसकी वजह से बीमारियां आपसे दूर भी होंगी, अल्लाह भी खुश होगा। दोस्त आपस में बैठते हैं, इनकी जो गैदरिंग होती है, वो मैं नहीं कहता हूँ कि यंग नौजवान तबके की बात करूँ, बुजुर्ग उसमें 50 साल की जायद उम्र के लोग भी बैठते हैं, बुजुर्ग भी बैठते हैं, तो वो जब बैठ जाते हैं तो फिर बैठे ही रहते हैं। उठने का नाम है, सही, रातें जागती हैं और दिन सोते हैं। इसके बारे में आप कहेंगे वो वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बेहतर है कि ना कि जल्द से जल्द सोएं। पहले ज़माना था रात को मगरिब के टाइम पे सन्नाटा हुआ करते थे रोडों के ऊपर, तो जल्दी सो जाया करते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। फजर की नमाज़ पहले काफ़ी लोग पढ़ते थे, और अब पहले मस्जिदें भर के होती थी, और अब जो है ना मस्जिदों में मुश्किल से एक सफ़ भी बहुत मुश्किल होती है। ये नौजवान नस्ल तो बस पता नहीं क्या हो गया है हमारी, कि वो बहुत दूर हो गई है दीन से। वक्त जो आप दोस्तों के साथ होटलों में बैठ के गुजारते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के गुजारते हैं, माँ बाप के साथ बैठ के उनसे हंस के बात करेंगे, तो बेहतर है कि माँ बाप के साथ बैठे हैं, उनको वक्त दें और अच्छा टाइम पास करें, माँ बाप के साथ गुजार के। और बच्चों के साथ गुजारे, और कोशिश करें नमाज पढ़ें, इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें, और बीमारी से दूर रहें। सेहत है, ज़िंदगी है,
तो पीछे जो कुंभा है आपका फलेगा फूलेगा, जब वो फलेगा फूलेगा आप भी फलेगा फूलोगे। आप आफरीदा क्यों हो गए? वालिदैन का नाम आते ही वालदेन होते हैं और कोई नहीं हो सकता, उनका वो बदल कोई नहीं हो सकता। मैं अपनी वालदेन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। ज्यादा वक्त वालदा के पास ही गुजारते होंगे। हाँ, जितना कोशिश होती है उतना करता हूँ मैं। वालिद वालदा है दोनों के साथ रहता हूँ, उनको कोशिश करता हूँ खुश रखूँ। पता नहीं होते वो अल्लाह जानता है। मदरसन के नाज़रीन, अगर हकीकत में आपके पास वक्त है ना तो वालिदैन को दे दे। दुनिया से चले गए ना तो कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई दरवाजे पे आपका इंतजार नहीं करेगा, कोई आपके दुख नहीं सुनेगा। वालिदैन को भी राजी कर लें। ये वक्त जो आपके पास है उनके साथ गुजार लें। अगर नहीं है तो उनके लिए बख्शिश की दुआएं करते रहें, उनके लिए कोई ऐसा काम कर जाए जो सदका जारिया हो जाए। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सलामत रखे। फरागत के लम्हात हमारे पास हैं, हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वालिदैन दुनिया से चले गए तो उनकी बख्शिश की दुआएं करने के लिए अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। कोई ऐसा काम कर जाए जो उनके लिए सदका जारिया बन जाए, कब्र में उनको राहत नसीब हो। आमीन। अपना जो वक्त हमारा जवानी का गुजरा है उसका कभी कभी बंदे को एहसास होता है कि मेरा वो वक्त फजूल अगर ना गुजरता, एहसास होता है उसको। हाँ, एहसास होता है। शुरू की जो जवानी थी ना, लड़कपन था, वो बहुत फजलियात में गुजरा, लेकिन अच्छा भी गुजरा। अल्लाह की इबादत भी करी, सिपारा भी पढ़ा, नमाज को समझने की कोशिश करी, दीन को समझने की कोशिश करी। दीन ने बहुत कुछ सिखाया। जो वक्त फजूलियात में गुजरा उसने भी बहुत कुछ सिखाया होगा। उसने भी बहुत कुछ सिखाया। तो बेहतर है कि वो अगर उसी वक्त जो है ना कोई एक अच्छे काम में होते, तालीम अच्छी हासिल होती और दुनिया के अंदर एक अच्छा मकाम भी शायद होता, वो जो मकाम अभी भी शायद मुझे हासिल नहीं है। फुर्सत के लम्हात में फजूलियात के नुकसानात होते हैं कि इसको कोई फायदा होता है। आइए इनसे मालूम करते हैं। दुनियावी नुकसानात हैं और फिर हम जो फजूल वक्त गुजारते हैं, तो अगर हम यही वक्त इबादत में और अपने अल्लाह के राह में कुरान शरीफ पढ़कर नमाज का अपने पूरा पाबंद होना चाहिए, तिलावत करे, उस इबादत करे, जो भी वक्त है अल्लाह से तौबा करे और बुरी सोबत से बचना चाहिए, बुरे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि वो फिर आदमी की ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती है और फिर वो गलत उसमें फील्ड में आ जाता है। ये होटल पे बैठकर और इसको ज़ाया करना सही नहीं है। हम भी इसी स्टेज से गुजरते हुए आज हमारी दाढ़ी सफ़ेद हो गए। हम जब जवान थे तो हमारा जो वक्त गुजरा उसका आज हमें पछतावा हो रहा है कि वो वक्त जो हमने गुजारा अगर सही नहीं था तो क्या उसका हमें एहसास हो रहा है आज। पिछले जो वक्त है वो तो खैर हर आदमी का जो है ना बहुत टाइट गुजरता है, क्योंकि उस वक्त 25 साल 30 साल जवानी होती है आदमी में, भरपूर काम करता है आदमी। मगर जब 50 52 55 साल का जब थोड़ा होता है तो थोड़ा उसको ब्रेक लगता है, पहले वाली बात नहीं रहती। और दूसरी ये है कि फिर भी आदमी को अपना हौसला नहीं हारना चाहिए और अपना काम करना चाहिए हर उम्र में। आजकल लोग 80 साल की उम्र में हमने देखेंगे काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। मदरसन के नाज़रीन, जैसे भी बुजुर्ग हमारे फरमान है कि अगर आपके पास वक्त है तो उसको फजूल ना गुजारे, कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखें, एंगेज रखें, चाहे वो आपके घर के काम हो, चाहे आप जरिया मुआश के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। बिजी रखेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, आप अल्लाह की इबादत भी कर सकेंगे, आप बच्चों की तरबियत भी कर सकेंगे, आप किसी पे बोझ भी नहीं बनेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, ज़हन भी आपका सेहतमंद रहेगा। आप मदरसन के नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस यही पैगाम कहना चाहता हूँ कि अपना वक्त, कीमती जो वक्त है उसको ज़ाया ना करें और अल्लाह की इबादत में या कोई काम में उसको मशगूल रखें, ताकि ये है कि बीमारी से भी बच सकें, अपनी फैमिली को भी टाइम दें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। आदमी को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर आदमी को चाहिए कि वो हराम ना खाए। तीसरी बात ये है कि उसको चाहिए कि वो नमाज़ पढ़े 5 वक्त की। इंसानियत की खिदमत करना चाहिए, कि वो खिदमत करेगा तो उससे अज़मत मिलेगी उसे। अगर ये इन चीज़ों पे अमल करेगा ना वो, तो फिर वक्त ज़ाया नहीं होगा, फिर उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी अपने कामों से, क्योंकि दुनियावी काम भी करना होंगे उसको, नमाज भी पढ़ लोगों के काम करना होंगे, नमाज पढ़ना होगी, रिज़्क़ हलाल तलाश करना होगा उसको।
उसे टाइम नहीं मिलेगा भाई सब फालतू टाइम। फजूल वक्त ज़ाया करने के नुकसानात भी होते हैं। बहुत नुकसानात हैं इससे नुकसानात ये होते हैं कि बुरी सोसाइटी मिलती हैं, बुरे लोग मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोग नहीं बैठे होते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो पसंद नहीं करते होटलों में बैठना। इससे पहले आदमी को फुर्सत नहीं थी, आदमी दिन भर काम करता था, शाम को आता था घर पे मजदूरी करके बेचारा, थका हुआ, खाना वाना खाया, नहाया धोया, नमाज पढ़ी, ईशा किया, सो गया और सुबह उठ के 6 बजे फिर चला गया काम पे। अब ये सिस्टम यहाँ ये हो गया है कि लोगों ने रात जागना शुरू कर दिया है। वो होटल में बैठना पसंद करेंगे क्योंकि 4 लड़के वहाँ जाते हैं ना, वहाँ गैदरिंग हो जाती है, कंपनी मिल जाती है, इसलिए घर में भी रात के 2 बजे जा रहा है उठ करके हो, घर वाले भी परेशान, खुद भी परेशान। अब वो जब 2 बजे जाएगा तो कब सोएगा और कब उठेगा वो? अब सुबह उठने भी उसने छोड़ दिया, अब सुबह उठता ही नहीं हो। अब तो उठता दिन के 2 बजे, दिन के 1 बजे उठ रहा है। रिस्क अल्लाह ताला सुबह फजर में बांटता है, उसे मिलता ही नहीं। आदमी को चाहिए कि हर बुरी सोसाइटी से, बुरे लोगों से बचे, उनसे अलग हटे, उनके पास ना बैठे, वक्त ज़ाया ना करे होटलों में बैठ करके। आप अपने तजर्बे की रोशनी में क्या फरमाते हैं कि लोग अक्सर अपना कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं? होटल पे बैठ के, आम जगहों पे बैठ के लोग फजूल वक्त ज़ाया करते हैं। अगर वही वक्त अगर अल्लाह के रास्ते में नमाज के लिए वक्फ कर दिया जाए या अच्छे काम के लिए कर दिया जाए तो सबसे अच्छी। आप क्या समझते हैं कि वो वक्त जो वहाँ पर बैठ के दोस्तों में फजूल ज़ाया किया जाता है, इसके दुनियावी कोई नुकसान भी होते हैं? जो होटल पे बैठ के जब फालतू जगह पे कोई बात करेंगे तो वो फालतू ही लोग होते हैं ना। अच्छी बात तो कोई भी नहीं कहा। वहाँ पे तो निशाई भी मिलेंगे आपको, वहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग बैठे होते हैं। अच्छी सोसाइटी में बैठेगा आदमी तो अच्छे काम करेगा, और अगर ऐसी जगहों पे बैठेगा तो फजूल लोगों के साथ फजूल वक्त गुजारेगा तो वो लाजिम बात है वो गलत सोसाइटी में बैठेगा। क्या हमारा भी कुछ वक्त ऐसा गुजरा जिसको आज हम सोचते हैं तो हमें पछतावा होता है? इससे पहले अगर चले जाए तो कुछ वक्त और था, अभी वो देख लें कि हमने फजूल वक्त गुजार दिया। यही कभी हम अच्छाई की तरफ अगर गुजारते तो बहुत अच्छा था, आखिरत के लिए सोच लेते कुछ तो बहुत फायदा होता। अच्छी बात यह है कि हमने ज्यादा वक्त बुरे लोगों में गुजारे नहीं, अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों में बैठने की तौफीक दी। अच्छे दोस्तों में बैठने का नतीजा यही हुआ कि हम अल्लाह ताला ने अपने पास भी बुलाया, अपना घर भी दिखाया और अपने रसूल के रोजे की ज़ियारत भी करवाई। फालतू बैठने से अच्छा है कि अच्छे काम में और लोगों के अच्छे सोबत में बैठे, औलिया कराम की सोबत में बैठे, अच्छे बुजुर्गों की सोबत में बैठे। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि फजूल वक्त ज़ाया करने के फायदे तो नहीं हो सकते लेकिन नुकसान जरूर है? सना तो बेशक बिल्कुल है, इसके बारे में बिल्कुल है, क्योंकि हमारे दौर में जब हमारी परवरिश हुई है तो हमारे वालिदैन का ये था कि मगरिब के अजान हुई आपने घर में आ जाना है, चाहे कितना ही आप ज़रूरी वो कर रहे हो। तो हम दौड़ दौड़ के घर पहुँचते थे। आजकल की नस्ल ये है कि मगरिब पे निकल जाती है और रात गए तक बाहर रहती है और अपना साइलेंट पे कर देती है, घर वाले कांटेक्ट में नहीं रहते, राब्ते में रहते, झूठ बोलते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। फ्रस्ट्रेशन इतनी है उनमें हसद इतनी हो गई है कि वो चाहता है कि सामने वाले के पास इतना कुछ है वो कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है। वो ज़राए ढूंढता है, चाहे वो जायज़ हो नाजायज़ हो, वो नाजायज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है कि वो शॉर्टकट है जिसमें उनको नुकसान होता है। वालिदैन भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है वालिदैन को भी। तो आजकल तो लड़के बिल्कुल भी किसी भी कंट्रोल में नहीं है। माँ बाप की क्या सुनेंगे, वो तो बाहर रहते हैं, हर वक्त बाहर की सुनते हैं, वो तो गैदरिंग करते हैं, होटलों में बैठे रहते हैं, वक्त ज़ाया होता है, अजान हो रही होती है, बैठे रहते हैं 4-4 घंटे चाय पी रहे होंगे, मोबाइल हाथ में होंगे, टाइम वेस्ट। अल्लाह अज़्ज़ व जल का डर और खौफ दिल से निकल गया तो ये बेबाकी होगी। वालिदैन का भी इसमें कसूर है, वालिदैन भी डरते हैं औलाद से, उनके डर की वजह से उनको छूट मिल गई, उनको आंखें दिखाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। अब उन्हें कहा वही आजकल के हालात ऐसे हैं, बच्चा है वो बिगड़ जाएगा, चलो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। वो ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं उसकी, फिर वो जायज़ नाजायज़, जायज़ तो कम ही करता है, नाजायज़ ख्वाहिशें ज़्यादा हो जाती हैं उसकी, ब्लैकमेलिंग भी आ जाता है। वो माँ बाप भी बेचारे परेशान होते हैं। तो हमारे चैनल के थ्रू आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपको इस वक्त मदनी चैनल पे देख रहे हैं? बस उनको यही कहूँगा कि भाई देखें, आप मेहनत करें, नमाज़ पढ़ें, कोशिश करें कि अपनी इस्लाह करें और तालीम पे तवज्जो दें, अपने माँ बाप का सहारा बने। मदनी चैनल के नाज़रीन, वक्त एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक ने आपको ये अता की है, ये बड़ी नेमत है, इसको गनीमत जाने। ये वक्त अगर आपसे छिन गया, वक्त गुजर गया, ये दोबारा वापस नहीं आएगा। आज वक्त है, जो कर सकते हैं आप कर गुजरें, जिससे दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। ये गैदरिंग, ये दोस्तियाँ, ये कंपनी जो आप ज्वाइन करके अपना वक्त ज़ाया करते हैं, फजूल बैठक में बैठते हैं, इससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा सिवाय
परेशानी के, सिवाय नदामत के। अगर आप जिंदा रहे तो बुढ़ापे में पछतावा होगा। काश वो वक्त हम ज़ाया ना करते। अल्लाह पाक हम सबको वक्त का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। फजूल वक्त क्यों ज़ाया करते हैं यहाँ पर? फजूल वक्त इसलिए ज़ाया करते हैं, जिनको काम नहीं करना होता वो बैठे रहते हैं। जब इंसान बैठा हुआ है तो मस्जिद चले जाए, मस्जिद भी कोई नहीं जाता, इधर ही बैठे रहते हैं, इधर ही सिगरेटें पीते रहते हैं। ये वक्त को ज़ाया करने वाली बात है। किसी गरीब के काम आना वो भी नहीं आते, हर एक किसी को धुतकार देते हैं, ऐसे धुतकारते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। किसी के काम आ जाओ, अगर आप अपने घर वालों के काम नहीं आ रहे हो तो आप किसी और के काम आ जाओ। ये फजूल वक्त जो ज़ाया करते हैं, इसका दुनिया में कोई नुकसान है? दुनिया में नुकसान क्यों नहीं है? आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, समझ लो आपने अपनी जवानी खराब कर दी, आपने अपना बुढ़ापा खराब कर दिया। और कौन आपका साथ देगा? कोई नहीं साथ देगा। बेटा बाप को मार रहा है, बेटा माँ को मार रहा है, अगर बाप मर गया तो माँ को मार रहा है। ये मेरे आंखों देखी बात है। और उनकी आखिरत भी गलत है। उनकी जब औलाद होगी तो औलाद बड़े होके अपने माँ बाप को ही मारेगी, क्योंकि जो दुनिया में करेगा उसके साथ उसका वही उसको होगा। भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, आखिरत भी खराब उनकी। फारिग वक्त जो बंदा गुजारता है फजूल, उसके दुनिया और आखिरत में भी नुकसान होता है। देखिए, जहाँ तक आप बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं तो बुज़ुर्गों को तो वैसे तो ज़िंदगी और मौत का कुछ नहीं पता, लेकिन एक जो साइकिल, लाइफ साइकिल होता है, तो उस लाइफ साइकिल में ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आप समझते हैं कि जी मेरा वक्त करीब आ रहा है, तो आपको आगे आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, नेक काम करना चाहिए। दुनियावी नुकसान क्या होते हैं अगर हम फजूल बैठक में बैठेंगे तो? दुनियावी नुकसान ये होते हैं कि फिर आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो स्लो हो जाते हैं। आपका जहन, लाजमी सी बात है, जब आप जहन को अपने यूज़ ही नहीं करेंगे या जिस्म को अपने यूज़ नहीं करेंगे तो वो कमज़ोर होता जाता है। हम जब अपने दीन का नाम लेते हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, तो उसकी तालीमात को फॉलो करना चाहिए ना। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लोग 7 बजे सो जाते हैं। हमारे बुजुर्गों को और हमारे बिलखसूस यंग नेशन को कोई ऐसा पैगाम देना चाहें कि जिससे वो अपने वक्त को ज़ाया ना करें, ऐसे एक्टिविटीज़ करें जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों का फ़ायदा हो। देखिए, बच्चे जो है ना वो फॉलो करते हैं, वो ज़बान से कहने से कुछ नहीं करते। वो जो अपने बुज़ुर्गों को करते हुए देखते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो बुज़ुर्ग जब तक अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। अब्दुर्रहमान भाई, आपके ज़ाती एक्सपीरियंस में वाकई ये बात ज़रूर आई होगी कि लोग अपना वक्त जो है बहुत ज़ाया करते हैं। वो फारिग जब होते हैं तो वो फजूल वक्त गुजार देते हैं। क्या उसका दुनिया में नुकसान उनको होता है फजूल वक्त ज़ाया करने का? दुनिया में भी नुकसान है, आखिरत का भी नुकसान है। फजूल काम से बेहतर है कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए जो आगे जाके काम आए। हमने अपनी ज़िंदगी में तजुर्बात ये हासिल किए कि जो मेरे साथ पढ़ते थे या मेरे बैचमेंट थे, वो उसमें से कुछ लोग जिन लोगों ने फजूल टाइम नहीं ज़ाया किया, आज अल्लाह की मेहरबानी से वो कोई सेक्रेटरी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बाहर मुल्क में बैठा हुआ है। हमने फजूल ज़ाया किया, हम कारोबार में मर रहे हैं, ना कारोबार के हालात आजकल हैं। और मैं नौजवान लड़कों से तो आज यही बोलूँगा, खुदारा होटल में बैठ के अपना वक्त ज़ाया ना करो। जो भी टाइम है ये दिन है, आपकी मेहनत के भी ये दिन है और काम के भी ये दिन है। हमारे नौजवान नस्ल क्या करती है, होटलों में बैठ के लूडो खेलती है, चाय पीती है और वो सारा दिन रात गुजार के जब नमाज का टाइम होता है, फजर का जो रिज़्क बांटने वाला अल्लाह रोज़ी देता है, उस टाइम जाके हम सो जाते हैं, सारा दिन सोए होते हैं। फिर शाम को आते, बाप से पूछो कि ये पैसे कैसे आते हैं, ये बाप कैसे कमाता है, बाप की तकलीफ कभी देखो। माँ को तो अल्लाह ने पैरों में जन्नत रखी है, वो तो ठीक है, उसका हक है, मगर बाप जो है ना वो बड़ा एक साया, एक छत है। अगर जिस दिन ये छत गिर गई ना तो ऐसे समझो उस घर को कब्रिस्तान है। मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, जब मेरा माँ बाप ज़िंदा था मैं बहुत मस्तियाँ करता था। जब मेरा माँ बाप फौत हो गया, हालांकि उस टाइम मुझे बच्चे थे, शादीशुदा था, मगर फिर भी टूट गया, आज तक टूट गया। अब जब परेशान होता हूँ तो मशवरा किससे करूँ, किससे मशवरा करूं? बाप होता था मशवरा देता था, माँ होती थी सहारा देती थी, आसरा देती थी। अब बीवी है वो थोड़ा बहुत आसरा देती है, बाकी तो ज़िंदगी ये है ना। और फजूल टाइम वेस्ट करना ये सबसे बड़ी नौजवानों की गलती है। आगे जाके ये ही हमारी स्टेज पे आएंगे तब जाके इनको पता चलेगा कि हमने क्या किया। जिस्म में जान है, ताकत है, बंदा कमा लेता है, आगे निकल जाता है, बाद में सुकून से बैठ के खाए। हम क्या करते हैं, ज़िंदगी ज़ाया करके
उम्र ज़ाया करके आखिर में बोलते यार ये नहीं हुआ। ये ज़मीन है, पढ़ो निकलो, मेहनत करो, तालीम के ज़रिए मेहनत करो, दीन के ज़रिए मेहनत करो, अल्लाह के ज़िक्र में निकल जाओ। क्योंकि सबसे पहले तो मैं कहता हूँ तो हमारी हर चीज़ में कामयाबी है नमाज। जब तक नमाज बंदा नहीं पढ़ता समझो उसका जिस्म मुर्दा है। आप वज़ू करो, नमाज पढ़ो, नबी की सुन्नत में चलो, खुदा की कसम सारा दिन सुकून है। मदीना के नाज़रीन, बहुत ही प्यारी बात इरशाद फरमाई कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बंदा जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाता है, अपनी लाइफ को उस सुन्नतों के मुताबिक गुजारता है, कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ना दुनिया में उसको परेशानी है ना उसको आखिरत में परेशानी है। आप ये बताइएगा कि दुनिया में इसके क्या नुकसानात हैं और आखिरत में इसके क्या नुकसानात हैं? फजूल वक्त ज़ाया करना। फजूल वक्त ज़ाया करे। दुनिया में तो नुकसानात ये है कि बंदा आगे निकल नहीं पाता, तरक्की नहीं कर पा सकता, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकता। मैं कहता हूँ आप ईमानदारी से काम करो, सच्चाई से करो। गुर्बत कुछ भी नहीं है। गुर्बत है क्या चीज़? गुर्बत कुछ नहीं है। गुर्बत को तोड़ने के लिए मेहनत है, सच्चाई है, ईमानदारी है, इंसानियत होनी चाहिए इस सीने में, इस दिल में। फजूल वक्त गुजारने से वालिदैन राजी होते हैं या नाराज होते हैं? नहीं, नाराज होते हैं। कभी भी बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा फजूल बैठे, किसी गलत सोबत में बैठे। बाप खुश होता है जब बेटा कामयाब होके आता है। बाप के आंखों में आंसू उस टाइम आते हैं खुशी के जब बेटा कामयाब होके आता है। मेरा बेटा हाफिज़ कुरान है, जब वो हाफिज़ कुरान करके आया उस दिन मेरे को बहुत खुशी हुई, आंखों में पानी आया। वो वक्त जो ज़ाया हो चुका, आप ज़हन जवानी में हमारे पीछे आपने उसका जिक्र भी किया, उसको पछतावा भी होता है? बहुत पछतावा होता है, रोना भी आता है, रोते भी हैं, मगर बच्चों को नहीं दिखाते। जब तकलीफ होती है दिल में रोते, अल्लाह के घर में जाके रोते, मगर कभी बच्चों को महसूस नहीं करवाया कि हमने आज कमाया या न कहीं नहीं कमाया, आपके लिए लेके आए। बाप वो चीज़ है, बाप औलाद को नहीं बताता। बाप कमाते कमाते मर जाता है, जो कमाया बनाया पीछे बच्चों को दे के जाता है, अपने लिए कोई कुछ नहीं रखता। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुना कि जो वक्त गुजारते हैं अच्छा, वो दुनिया में भी फ़ायदा होता है, उसका आखिरत में भी फ़ायदा होता है। वालिदैन उसी औलाद से खुश होते हैं जो फजूल वक्त ज़ाया नहीं करते। अल्लाह पाक हम सबको वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम फुर्सत के लम्हात में हमने ज़िंदगी के कीमती लम्हात की अहमियत और उन्हें फजूल कामों में ज़ाया करने के नुकसानात पर गौर किया। यकीनन ये अल्लाह पाक की अता करदा अजीम नेमत है। हमें ये सोचना है कि इनका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इस बात को हमेशा याद रखें कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का एक एक लम्हा मुफीद गुजरना चाहिए, बामकसद गुजरना चाहिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त हमारी आखिरत का तयन करता है। आइए अहद करते हैं कि हमारे फुर्सत के लम्हात ज़ाया नहीं गुजरेंगे, बल्कि इसको दुनिया और आखिरत के मुफीद कामों में गुजारने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्तगी, इल्म दीन हासिल करना और मदनी चैनल देखते रहना हमें गुनाहों से बचने और फजूलियत से दूर रहने का बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने कीमती वक्त को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बनाए, आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फुर्सत के लम्हात गए नेमत खुदा की जान लो, कर लो इल्मे नेकियां जन्नत का यूं सामान लो।